الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام اور حمد کے بعد سامعین محترم، آج یکم مئی ہے اور آج پوری دنیا میں یوم مزدور کے طور پر منایا جاتا ہے، اور پاکستان میں بھی اور دیگر ممالک میں بھی غالباً آج یوم تعطیل بھی ہے، چھٹی کرائی جاتی ہے مزدوروں سے یکجہتی کے لیے۔ کہا جاتا ہے کہ شکاگو میں کچھ مزدوروں کو آج ہی کے دن مارا گیا تھا، تو ان کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے، لیکن اس میں بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کچھ اور ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ تو میں تاریخی حقائق کی طرف نہیں جاتا کہ آج کے دن کی تاریخی حیثیت کیا ہے، میں مزدوروں کے حوالے سے اسلام کا جو تصور ہے اس پر بات کروں، کیونکہ عالمی سطح پر جو ایام منائے جاتے ہیں بہت سارے ایام، اگر آپ پوری اقوام متحدہ کی لسٹ منگوا لیں تو کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے جو کسی نہ کسی حوالے سے منایا نہ جا رہا۔ کسی دن کو انہوں نے فادرز ڈے کا نام دے دیا، کسی کو مدرس ڈے کا نام دے دیا، تو کسی کو امن کے عالمی دن کا نام دے دیا۔ تو ان سب چیز کے اندر جو مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، جو میرا ایک چھوٹا سا ناقص سا مطالعہ ہے، کہ یہ سب ڈھکوسلے ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ ڈھکوسلے۔ یہ اقوام متحدہ اور اقوام عالم کی طرف سے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے وہ یہ ایام جو ہے وہ منتخب کر دیے گئے۔ میری بات آپ سنیں گے؟ ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، کہیں گفتگو ہو رہی تھی تو ایک شخص نے کہا کہ دیکھیں ہمارے ملک میں اولڈ ہاؤس بنانے کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ لوگ جو ہیں اولڈ ہاؤسز بنا رہے ہیں، بڑے بڑے ادارے جیسے لاہور میں بھی آپ جائیں، اندرون لاہور فاؤنٹین ہاؤس ہے، یہ تو بہت پرانا ہے، کچھ نئے بھی کھل رہے ہیں، کراچی میں بھی ہے، اور چھوٹے چھوٹے شہروں میں جو درد دل رکھنے والے ہیں وہ اولڈ ہاؤس بنا رہے ہیں۔ انہوں نے اس کا نتیجہ کیا نکالا؟ اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ پاکستان میں
वेलफेयर के काम के करने का रुझान बढ़ रहा है। मेरी बात आप समझ गए? और लोग जो है दर्द दिल रखने वालों का इजाफा हो रहा है। मैंने कहा ये भी ठीक है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। ये तो एक रोशन पहलू है जिस पर आपने इशारा किया। मेरे पास अल्लाह ने वसाइल दिए हैं, आपके पास वसाइल दिए हैं, आप देख रहे हैं कि लोग कस्मपुरसी में जिंदगी गुजार रहे हैं। आपने एक ओल्ड हाउस बना दिया और कहा कि यहाँ पर बेसहारा बुजुर्ग लोग रहेंगे, ठीक है, या जिनका कोई पुरसान हाल नहीं है वो रहेंगे। तो अगर देखा जाए तो वाकई में ये बहुत अच्छा काम है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ईद ही ओल्ड हाउस कई दफा गया हूँ, आज से 5 साल 10 साल पहले। वहां पे मैंने बुजुर्गों से मुलाकातें की हैं, उनके अहवाल सुने हैं। तो मैंने कहा एक पहलू तो इसका बहुत अच्छा है, रोशन है, पॉजिटिव है, लेकिन एक पहलू इसका ये भी है जो बहुत ही डार्क और नेगेटिव है कि हमारे मुआशरे के अंदर बूढ़ों को, बुजुर्गों को उनके घरों में, हकीकी घरों में रखने का रुझान खत्म हो रहा है। हम भी मगरिब की तरह हो रहे हैं। पहले बेटा बाप की खिदमत किया करता था, अपने लिए एजाज समझता था, ऑनर समझता था कि मुझे अल्लाह ने ये तौफीक दी कि मैं अपने बूढ़े बाप और बूढ़ी माँ की निगहदाश्त कर रहा हूँ और उनकी खिदमत कर रहा हूँ। आज वही बेटा अपने बाप और अपनी माँ को बोझ समझ रहा है। इस वजह से ओल्ड हाउसेस खुलने का रुझान भी बढ़ रहा है, इसकी नीड पैदा हो रही है, क्या जरूरत पैदा हो रही है। तो इस पहलू पर भी गौर किया जाए कि किसी मुआशरे में ओल्ड हाउसेस का खुलना इस बात की दलील है कि उस मुआशरे के अंदर बूढ़ों को, बुजुर्गों को उनके घरों में जगह नहीं मिल रही। और ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है, बहुत बड़ा अलमिया है। कभी आप जाएं ओल्ड हाउसेस में और लोगों का इंटरव्यू करना शुरू करें, मेजॉरिटी आपको वहां पर रहने वालों की पढ़े लिखे लोगों की मिलेगी। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। एक शुमारियाती तज्जिया में आपको बता रहा हूं कि जो गरीब लोग होते हैं ना, वो गुर्बत में भी अपने माँ बाप को बर्दाश्त कर लेते हैं किसी न किसी तरह। और जो अमीर लोग होते हैं उनके चौं चौचले इतने बढ़ जाते हैं कि माँ बाप बूढ़े होते हैं तो वही माँ बाप उनको बोझ लगना शुरू कर कहते चलो जी ओल्ड हाउस में पैसे देने को हम तैयार हैं, लेकिन हम इनकी खिदमत करने को तैयार हैं। वो नेक लोग होते हैं जो अपने माँ बाप को ओल्ड हाउस में छोड़कर ओल्ड हाउस के मालिकान को कहते हैं कि हम महाना पैसे दे दें। वो नेक लोग होते हैं आज के मुआशरे। बिल्कुल यही मामला आज आप मजदूरों के हवाले से भी सोच लें कि अगर हमारे मुआशरे के अंदर लंगर खाने बहुत खुल रहे हैं, क्या बोले, लंगर खाने। हर सोसाइटी में आप जाइए, कोई 2-4 लोग ऐसे दर्द दिल रखने वाले मिल जाएंगे जिन्होंने दोपहर का खाना, रात का खाना, मैंने भी देखा, आप लोग भी देखते हो। हमारी सोसाइटी में मेरे घर के सामने छोटी सी मस्जिद है, उस मस्जिद के बाहर पिछले 5-6 साल से तकरीबन दोपहर का खाना 200-250 लोगों को एक शख्स जो है फ्री में खिलाता है। और इसी तरह आप चले जाए किसी और जगह में, कई जगहों में आपने देखा होगा, कोट लखपत वगैरह जाएं तो दोपहर के वक्त कभी गुजर हो तो आप देखेंगे गाड़ियों में लोग आते हैं और उनके पास बॉक्सेस होते हैं और वो फिर मजदूर लाइन में लगे हुए होते हैं और उन मजदूरों को वो दोपहर का खाना दे रहे हैं। अच्छी बात है या नहीं, बोले ना, अच्छी बात। लेकिन इसका एक नेगेटिव पहलू भी है, इसका एक नेगेटिव पहलू भी है जिस पर हमारी तवज्जो नहीं जाती। वो ये है कि वो मजदूर जो इस मुल्क की तामीर और तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं, वो मजदूर जो हमें मकानात बनाकर देते हैं जिन मकानों में हम ठाट बाट की जिंदगी गुजार रहे होते हैं, वो मजदूर के जिनके बल पर हमारी फैक्ट्रीज, हमारी इंडस्ट्रीज, हमारे कारखाने, उनकी मशीनें चल रही होती हैं, वो मजदूर जो सुबह शाम 24 घंटे
कारखानों को चला रहे होते हैं, उनको इतना भी पैसा नहीं मिलता उजरत, उनको इतनी जो है तनख्वाहें नहीं मिलती कि वो अपना पेट, इज्जत नफ्स को बरकरार रखते हुए घर के अंदर चार दीवारी के अंदर हमारी तरह खा सके। कभी आप उस लाइन में लगे हैं? बोले इनमें से कोई शख्स, आप में से, मैं, मलिक साहब, आप बुजुर्ग, कोई खड़े हो जाए, हाँ जी मुफ्ती साहब, मैं भी जाकर वहां बैठकर खाना खाता हूं जहां पे लंगर लगता है, जहां पर फ्री में खाना खिलाया जाता है। बोले क्या हमारा दिल चाहेगा? चाहेगा? अगर हम कभी बैठ भी जाएं तो शर्म से पानी पानी हो जाते, हर तरफ देख रहे हो तो कोई देख तो नहीं रहा। तो कोई भी इंसान जिसकी इज्जत नफ्स है, अगरचे लंगर खाने क्यों ना हो, अगरचे इखलास नीयत के साथ ही क्यों ना खोले जा रहे हों, अगरचे बहुत एहतमाम के साथ ही क्यों ना खिलाया जा रहा हो, इज्जत नफ्स रखने वाला शख्स कभी भी सरेआम रोड पर बैठ कर खाना खाना पसंद नहीं करता। और अगर कोई शख्स ऐसा कर रहा है तो समझ जाए कि मुआशरा उसकी जरूरत को उसके घर के अंदर पूरा करने से कासिर हो चुका है ना? बोले तो सही। हाँ, यानी ये दूसरा पहलू भी तो है ना कि वो मजदूर जो हमें सब कुछ करके दे रहा है, हम उसकी इज्जत नफ्स की हिफाजत भी नहीं कर पा रहे हैं। एक आध लोग मुआशरे के, जिनको अल्लाह ने दिल दिया हुआ है, जिनको रब्बे कायनात ने लोगों की मोहब्बत दी हुई है, वो आगे निकल के जिनको पूरा मुआशरा जो है मिलकर जिनकी किफालत जो है मुआशरे को करना चाहिए था, चंद लोगों ने वो जिम्मेदारी की। आज देखिए क्या हो रहा। आप जाइए, आप डेटा जमा कर ले। आज मैं सुबह में एक मीटिंग में था, आज अभी की मैं बात कर रहा हूँ, पीसी होटल में एक मीटिंग थी, इसी हवाले से, वक्फ के हवाले से। एक शख्स हैं सियालकोट के, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे कल कहा, मैं कल डेरा इस्माइल खान में था, एक प्रोग्राम में गया हुआ था, तो उन्होंने फोन किया, मुफ्ती साहब आपसे मिलना चाहते, मैं सियालकोट से आऊँगा, शाम का टाइम दे दे। मैंने कहा नहीं, आज मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है, मैं पता नहीं 8 बजे पहुँचूँ, 9 बजे। तो उन्होंने कहा आप सुबह का टाइम। मैंने कहा कल जुमा है, फिर अर्ली कर लेते हैं, जल्दी है। मैंने अपने वकील से भी बात की हुई है, शरई एतबार से आपसे रहनुमाई लेनी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, सुबह का वक्त कर लेते हैं, आप मेरे घर तशरीफ ले आए। कहने लगे मैं रात आ जाऊँगा पीसी होटल में, वहीं पे हम मुलाकात कर लेते। तो मैं चला गया सुबह। तो मैंने देखा वहाँ पर जो है लेबर डे के हवाले से कुछ जगहों में कुछ जो उनके रूम्स होते हैं ना, ठीक है, सेमिनार रूम्स, वहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तैयारियां हो रही उसको प्रोग्राम में। तो मैं समझ गया कि अब ये बड़े बड़े लोग आएंगे, एनजीओ के लोग, इनके एनजीओ के लोग आएंगे, जो गैर मुल्की फंड से जो एनजीओ चल रही हैं उनके लोग आएंगे, प्रेजेंटेशन दिखाएंगे और बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें करके यहीं पे बैठे बैठे मजदूरों को अमीर बनाकर रुखसत हो जाएंगे और फिर अगले साल यकम मई का इंतजार करें। हमारा जो दीन है, दीन इस्लाम, ये हमें अमली तस्वुरात देता है, सिर्फ नजरिया नहीं देता। नजरिए के साथ साथ उसकी अमली तत्बीक, जिसको आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं, वो भी हमें देता है। पहली बात तो याद रखिएगा कि मजदूरों के हुकूक पूरे हो ही नहीं सकते जब तक कि दुनिया में सरमाया दराना निजाम मौजूद है। सरमाया दराना निजाम का तस्वुर है आपको, कि जिसके अंदर लोगों की मजबूरियों को खरीदा जाता है, जिसमें इंसानों का इस्तेहसाल किया जाता है, जिसके अंदर मजदूर जब उसके सामने खड़ा होता है मखलूकुल हाल, कपड़े फटा हुआ, तो वो जितना ज्यादा मखलूकुल हाल होगा, सरमाया दराना मिजाज का हामिल ताजिर उतने ही ज्यादा उसके लिए उजरत कम मुकर्रर करेगा। ये तो मजबूर है।
अगर दूसरे लोग 100 रुपए लेकर मेरा काम करते हैं तो ये 80 पे भी मान जाएगा, 70 पे भी मान जाएगा, और 80 और 70 को वो अपनी अक्लमंदी पर महमूल करके कहेगा कि मैंने अपनी चालाकी और अपने तदब्बर और अपने फहम फरासत से इस शख्स के जरिए से 30 रुपए ज्यादा मुनाफा कमा लिया। यह है सरमाया गिराना से। और बदकिस्मती यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो निज़ाम राइज है वो सरमाया गिराना निज़ाम, जिसमें इंसानों को उनकी मजबूरियों पे सामने रखकर तोला जाता है। हमारा दीन ऐसा नहीं। इसीलिए आप देखिए कि आप जाएं, अभी सर्वे कर लीजिए, आज यौम मजदूर है ना, मजदूर मजदूरी कर रहा है, सेठ अपने घर में बैठा। इसीलिए किसी शायर ने कहा था, आज के दिन पे तंज करते हैं कि लोगों ने आराम किया और छुट्टी पूरी की। लोगों ने आराम किया और छुट्टी पूरी की। यकुम मई को भी मजदूरों ने मजदूरी की। मेरी बात समझ रहे हैं? सेठ अपने घर पे है। देखिए, कोई भी मुआशरा, कोई भी कारोबार 3 तरह के लोगों के साथ जो है चल रहा होता है। आज हमारे मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर दिमाग में ये बात बैठ गई, जिसके पास पैसा है वो असल है। क्या है? जिसके पास पैसा है वो असल है, जिसके पास सरमाया है वो असल है। जबकि आप गौर करें तो 3 फैक्टर्स हैं। कितने बोले? 3। इन 3 फैक्टर्स को जब आप मिलाएंगे तो कारोबार बनता है। अगर इनमें से कोई एक भी आप स्किप कर दें, निकाल दें, तो फिर कभी भी कोई कारोबार नहीं चल सकता। उनमें एक क्या है? सरमायादार। क्या है? सरमायादार। इस्लाम में सरमायादार नहीं कहा जाता, दौलतमंद। ये भी मैं आपको बता दूं। आप कहेंगे मुफ्ती साहब आपने क्या बात कर दी? सरमायादार और दौलतमंद में एक ही तो मतलब है। मुझे आप कह दें कि मुफ्ती साहब सरमायादार हैं या मुफ्ती साहब दौलतमंद हैं, तो आमतौर पे एक ही तस्वुर है ना कि मुफ्ती साहब अमीर आदमी है। क्या है? अमीर आदमी। या मैं किसी को कहूँ, इनको सामने हमारे भाई बैठे हैं, मैं कहूँगा आप सरमायादार हैं, या मैं ये कह दूं आप दौलतमंद हैं, आप में से हर शख्स इन दोनों का एक ही मतलब लेगा। बोले? एक ही मतलब लेगा। लेकिन दीन में ये दोनों अलग अलग माना रखते हैं। दीन में दौलतमंद का तस्वुर है, सरमायादार का तस्वुर नहीं है। सरमायादार का तस्वुर सरमायादाराना निज़ाम में, ये इस्तिलाह, ये टर्मिनोलॉजी, ये कहाँ है? कैपिटलिज्म के अंदर। सरमायादार वो होता है जो सरमाए से मजीद पैसा कमाना चाहता हो। क्या कहो? पैसे से ज्यादा पैसा कमाना चाहता हो, और पैसा कमाने के लिए जिस तरह के भी वो हरबे इस्तेमाल करना चाहे इस्तेमाल कर सकता है। जैसे आज हमारा मुआशरा सरमायादारों से भरा हुआ है। लोग सरमायादार हैं, दौलतमंद नहीं है। क्या है? सरमायादार है। एक अमीर आदमी अमीर बनने के लिए क्या करता है? मार्केटिंग करता है। बोले? मार्केट। उसको पता है कि मार्केटिंग किए बगैर मैं मजीद दौलत नहीं कमा सकता, तो वो मार्केटिंग करता है। अच्छा जी, मार्केटिंग तुम करते हो, मार्केटिंग में कोई मसला नहीं, मार्केटिंग कर सकता है। आप अपनी प्रोडक्ट को, अपनी मसनूआत को सोसाइटी के अंदर मुतारिफ कराने के लिए आप कोई ना कोई तरीका इख्तियार कर सकते हैं कि जी मैं फला चीज पैदा करता हूं और अच्छी क्वालिटी का पैदा करता हूं, आप मुझसे आकर खरीदें। इस्लाम ने मना नहीं किया। लेकिन आज का सरमायादार जानता है कि हमारा मुआशरा सादा मार्केटिंग को पसंद नहीं करता। मार्केटिंग में जब तक औरत को शामिल नहीं किया जाएगा, मेरी बात आप समझ रहे हैं? मार्केटिंग के अंदर जब तक खातून को शामिल नहीं किया जाएगा मॉडल बनाकर, उस वक्त तक मेरी मार्केटिंग कामगर नहीं होगी। और जब मेरी मार्केटिंग नहीं चलेगी तो मेरे सरमाए में इजाफा नहीं होगा। आप टीवी खोल लीजिए,
कोई एक इश्तिहार दिखा दीजिए, मार्केटिंग इश्तिहार को कहते हैं, एक इश्तिहार दिखा दीजिए जिसमें खातून ना हो, जिसमें खातून ना हो। मोटरसाइकिल का हो इश्तिहार, मोबाइल फोन का हो, टूथपेस्ट का हो, किसी भी शय का हो। तो सरमायादार कौन होता है कि जो पैसा कमाना चाहता हो, चाहे उस पैसा कमाने के लिए अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के खिलाफ वर्जी क्यों ना हो, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की खिलाफ वर्जी क्यों ना हो जाए, चाहे वो अल्लाह उसके रसूल के अहकाम को तोड़ दे, लेकिन वो कहे कि मुझे मुनाफा मिले, मुझे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिले, चाहे रिसेप्शन पे खातून को बिठाकर, चाहे मार्केटिंग के अंदर बेपर्दा नीम बरहना खवातीन को दिखाकर मुझे पैसा मिले। ये है सरमायादार। दौलतमंद कौन होता है? दौलतमंद ताजिर भी हो सकता है, दौलतमंद गैर ताजिर भी हो सकता है। इस्लाम में दौलतमंद का तस्वुर मौजूद है। मैं दोबारा उधर ही आऊंगा। अब दौलतमंद किसे कहते हैं? दौलतमंद को देखना है तो हजरत उस्मानी गनी को देख लीजिए। मेरी बात है, लदे हुए ऊंटों से लदे हुए अनाज का काफिला आ रहा है, अनाज का काफिला आ रहा है, सैकड़ों ऊंट है और उस पे अनाज लदा हुआ। मदीने में अनाज की किल्लत है, मदीने में अनाज की किल्लत है। आज का सरमायादार होता तो कहता अनाज की किल्लत है, अनाज मेरा आ रहा है, अब मैं अपनी मर्जी से कीमत का तयन करूंगा, अपनी मर्जी से 100 की चीज 1000 में बेचूंगा। पता है कि लोग मजबूर हैं, वो 100 क्या 200 क्या 1000 में भी खरीदने पे मजबूर हो जाएंगे। लेकिन दौलतमंद क्या होता है? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से खुशखबरी मिली कि जो इस वक्त मुसलमानों की मदद करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको ये अजर अता फरमाएगा। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूरे के पूरे ऊंटों से लदे हुए काफिले के अनाज को अल्लाह की राह में बगैर किसी मुआवजे के खर्च कर देते हैं। यह है दौलतमंद। कौन? दौलतमंद। सरमायादार और दौलतमंद का फर्क देखना है तो हजरत उस्मान गनी को देख लीजिए, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को देख लीजिए, हजरत अली शेर खुदा को देख लीजिए, हजरत सिद्दीक अकबर को देख लीजिए। ये मुंह मांगी कीमत पर दौलतमंद है, अल्लाह ने तौफीक दी है। हजरत बिलाल हबशी को कहते हैं इसको मैं खरीदता हूं, आजाद कर दो। यानी कितने में? हजरत बिलाल हबशी की कीमत लगा दी गई बहुत ज्यादा। वो कहने लगा, जो उनका आका था, सोचता है कि इतनी कीमत लगाओ कि ये खरीदने से इनकार कर दे। हजरत सिद्दीक अकबर निकाल लो पैसे, इनको आजाद, आजाद हो गए, उधर से आजाद हो गए। एक तरफ से जब आजादी मिलती है तो वो आजादी मुंतकिल होती है, ट्रांसफर होती है नए खरीदार की तरफ। सिद्दीक अकबर की तरफ से वो गुलामी ट्रांसफर हो गई। हजरत सिद्दीक अकबर ने हजरत बिलाल हबशी को आजाद कर दिया और आजाद किया तो लोगों ने कहा ये क्या हो गया सिद्दीक अकबर को? हजरत बिलाल हबशी जैसे गुलाम को इन्होंने मुंह मांगी कीमत पे खरीद लिया और आजाद भी कर दिया, ये कैसे ताजिर है? तो हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा मेरी ये तिजारत मेरे रब के साथ है, मेरी ये तिजारत मेरे रब के साथ है। और फिर उस रब ने क्या इनाम दिया, उस रब ने क्या इनाम दिया? कि सूरतुल लैल के अंदर, सूरतुल वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला वमा खलक़ ज़कर वल उन्सा, सूरत याद है? इस सूरत के अंदर आखिर की सारी आयात करीमा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान व अजमत में नाजिल फरमा दी। यह है दौलतमंद। कोई भी कारोबार दौलत के बगैर नहीं चलता। दूसरे नंबर पे जो चीज आती है वो स्किल। क्या दौलत है, महारत नहीं है, पैसा डूब जाएगा, है ना? अब माशाल्लाह सब लोग जहां दीदा लोग बैठे हैं, मुझसे ज्यादा तजर्बा रखने वाले लोग बैठे हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कारोबार करते हुए मामलात करते हुए गुजार दी है। ठीक है, तो फिर दूसरे नंबर पे क्या कहता है इस्लाम? स्किल, महारत।
है ना। आपने कोई मशीन चलानी है, इंजीनियर्स की जरूरत है ना, आर्किटेक्ट की जरूरत है, ये महारत है। अगर महारत नहीं है तो सरमाया दौलत जीरो। ठीक है, हमारी जो दौलत है वो अंडे की तरह नहीं है कि अंडे के ऊपर मुर्गी को बिठा दिया जाए तो 20-22 दिन में चूजे निकल आते हैं। आप 100 साल में बैठे रहे उस पर तो वो वैसे ही रहेगा। आजकल तो वैसे ही इन्फ्लेशन का जमाना है। किसका जमाना है? इन्फ्लेशन का, अफराते ज़र का। तो उस पर बैठने से वो और डी वैल्यू होता जाएगा। उससे चूजे निकलने की बजाय उसमें मौजूद चूजे मरना शुरू हो जाएंगे। मेरी बात है। तो दौलत, उसके बाद क्या है बोले? महारत। दौलत भी है, स्किल भी है। इंजीनियर्स को कहें ना कि जो भट्टी है उस भट्टी में जाके आग लगाए, वो आपको भट्टी बनाकर तो दे देगा, मशीनरी बनाकर दे देगा, उसकी इंस्टॉलमेंट भी कर देगा, लेकिन मशीन चलाने से इनकार। बोलेगा ये काम मेरा नहीं, मेरी महारत इतनी थी और मैं इतना ही कर सकता हूँ। ऐसा ही है ना। किसी इंजीनियर्स को आपने कभी भट्टी में आप लोहे को पिघलाते हुए देखा है? वहां पे अपने खून और पसीनों को कौन बहा रहा होता है? बोले तो सही। हाँ, ये तीसरा फैक्टर है, मजदूर। ये दोनों हो, दौलत भी आपके पास है, महारत भी आपके पास है, मजदूर ना हो तो आपकी फैक्ट्री बंद, आपकी फैक्ट्री की कोई बुकत नहीं, आपकी दौलत से मजीद पैसा पैदा नहीं हो सकता। इसीलिए इस्लाम ने सबसे ज्यादा अहमियत मजदूरों को दी है। किसे दी है? मजदूरों को दी। ना दौलत को दी और ना ही महारत को। सबसे ज्यादा अहमियत किसे दी गई? दौलत को। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने मजदूरों के हुकूक को वाज़े तौर पर बयान फरमाया। दिलचस्प बात यह है, हुजूर की तरफ मजदूरी की निस्बत हम नहीं कर सकते, अदब का तकाजा यह है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की शान और अजमत इतनी आला है कि हम हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ाते गिरामी के साथ लफ्ज़ मजदूर को बयान नहीं कर सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने भी कसब के लिए, कसबे हलाल के लिए मेहनत व मुशक्कत फरमाई और उजरत हासिल। और ये सुन्नत है अंबिया कराम। जो मजदूर काम से भागते हैं, हमारे यहाँ काम चोरों की भी कमी नहीं है, और अक्सर इन जगहों में जहाँ मैंने अभी शुरू में बात की, जहाँ पे फ्री लंगर वगैरह रखता है, उसमें जो मजदूर लोग होते हैं ना, कम होते हैं। क्योंकि जो मजदूर होते हैं ना, उनके अंदर जो मेहनत मुशक्कत करने वाला शख्स होता है, जितनी मेहनत और मुशक्कत को उसके अंदर जज्बा होगा, उसके अंदर हया भी उतनी होती है। मेरी बात आप समझे? हया आप समझते हैं ना? हया एक बहुत बड़ी नेमत है और वो सब खत्म हो जाएगी हमारे मुआशरे से, हमारी सोसाइटी से हया खत्म हो चुकी। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है जिसमें आपने इरशाद फरमाया कि इज़ा फ़ातल हया फ़फ़अल मा शिता, कि जब तुम में हया खत्म हो जाए तो जो चाहो करो, जो चाहो। उसका मतलब ये हुआ कि हया अल्लाह ताला की दी हुई वो अजीम नेमत है कि जिस अजीम नेमत की बरकत से इंसान को बहुत सारी बुराइयों से महफूज हो जाता है। हया सिर्फ वो नहीं जो हमने समझा हुआ है खवातीन के हवाले से कि बहन में हया नहीं है, खातून में हया। हया इंसान के हर हर फर्द के अंदर होनी चाहिए, मर्द में भी, औरत में भी, ठीक है ना, बूढ़े में भी, जवान के अंदर। तो जितना ज्यादा मजदूर होगा, मेहनत कश होगा, उतना ही ज्यादा उसके अंदर हया होगी और वो कहेगा या अल्लाह, मैं जब मजदूरी कर रहा हूं मैं वहां लाइन में क्यों लगूं। अक्सर वो लोग हैं जो कामचोर वहां चले जाते। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत में मजदूरों को इतनी अहमियत दी गई कि आप अलैहिस्सलाम ने मजदूरी को इंडोर्स करने के लिए, क्या करने के लिए बोले? इंडोर्स करने के लिए, उसको अहमियत और अजमत और फजीलत देने के लिए आप अलैहिस्सलाम ने भी ये काम किया, ताकि कोई मजदूर जब मजदूरी करे तो उसके दिमाग में ये बात हो
کہ میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ جب وہ پتھر اٹھائے، جب وہ اینٹیں توڑے، جب وہ مزدوری کرے، جب وہ سیمنٹ کی بوری توڑے، تو وہ یہ سمجھے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت طیبہ ہے۔ اور ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں کچھ نشانات ہیں جو مزدوری کرنے کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا ہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محنت و مشقت کرتا ہوں، اس کی وجہ سے یہ آپ کو آثار نظر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے ہاتھ کو لے کر بوسہ دیا۔ یہ عظمت، یہ عظمت مزدوروں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے معروف صحابی ہیں، اور یہ صحابہ کرام میں درویش صفت صحابی کہلاتے تھے۔ ویسے تو سبھی، لیکن حضرت ابو ذر غفاری اپنے مزاج کے اعتبار سے بڑی درویش صفت تھے، اور آپ فقیری کو پسند فرماتے تھے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی۔ نصیحت سنیے کیا آپ فرماتے ہیں کہ من کان اخوہ تحت یدہ، کہ اے ابو ذر، اگر کوئی تمہارا بھائی تمہارے ماتحت ہو، اے ابو ذر، اگر تمہارا کوئی بھائی کیا ہو، تمہارے ماتحت ہو، یعنی تمہارے انڈر کام کر رہا، تو کیا کرو، تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا تَأْكُلُ، اس کو بھی وہی کھلاؤ جو تم کھا رہے ہو، اس کو بھی وہی کھلاؤ جو تم کھا رہے ہو۔ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبِسْ، اور اس کو بھی وہی پہناؤ جو تم پہن رہے ہو۔ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، اور اس پر کوئی ایسا کام نہ لا دو، ایسا کام اس پر نہ ڈالو کہ جس سے وہ جو ہے وہ پریشان ہو جائے، اس کی طاقت سے زیادہ اس پر کام نہ ڈالو۔ اور آگے کیا فرمائے؟ یہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، کن کو؟ حضرت ابو ذر غفاری کو، جو مزاج کے اعتبار سے درویش صفت صحابی۔ فرمایا کہ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ، اور اگر تمہیں کوئی کام دینا پڑ جائے ایسا کہ جو کام بڑا مشکل ہو، تو پھر تم اس کے ساتھ مل کر اس کی مدد کرو۔ کھڑے ہو جائیں کوئی جو مجھے کہے کہ ہاں مفتی صاحب، میں کارخانہ دار ہوں اور اپنے مزدوروں کے ساتھ یہی معاملہ کرتا ہوں، میں اس کو سلام کروں گا۔ یہ ہے وہ معاشرہ جو اسلام چاہتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ جو تفاوت ہے، تفاوت ڈفرینسز جو ہیں، فرق جو ہے، کہ کوئی مزدور ہے، کوئی آقا ہے، کوئی کارخانہ دار ہے، کوئی ملازم ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ جو کارخانہ دار ہے اس کی عزت زیادہ ہے اور جو مزدور ہے اس کی عزت کم ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید کے سورہ بنی اسرائیل کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کیا فرمایا بولیں؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، اور ہم نے بنی آدم کو معزز و مکرم بنایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ کارخانہ دار کو معزز بنایا ہے اور مزدوروں کو نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ خطیب صاحب کو بنایا ہے، امام صاحب کو نہیں۔ امام صاحب کو بنایا ہے، مؤذن کو نہیں۔ مؤذن کو بنایا ہے، خادم کو نہیں۔ اللہ نے بلا تخصیص، ود آؤٹ اینی اسپیسیفیکیشن کیا فرمایا؟ اکراس دا بورڈ، تمام کے تمام انسان کو اللہ نے کیا بنایا ہے؟ معزز، معزز بنایا۔ یہ تو انسان کی معیشت ہے نا، کہ اس میں اگر سب برابر ہوتے تو انسان کی زندگی مشکلات کا شکار ہو جائے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر سب کو برابری کی سطح پہ رکھ دیا جاتا تو پھر کون کس کے لیے کام کرتا؟ میں آپ لوگوں کے مقابلے میں دینی تعلیم زیادہ رکھتا ہوں، ہو سکتا ہے مجھ سے بھی زیادہ ہوں یہاں پر، میں ایسی جنرل بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ یہاں پر بیٹھے ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔
तो मैं यहाँ पर बैठ कर ये काम कर रहा हूँ। मेरी बात आप समझ रहे हैं? अगर हम सब इस मामले में बराबर होते तो फिर या तो सब नीचे बैठे होते या सब ऊपर आने की कोशिश करते और मुआशरा बिगाड़ का शिकार हो, इम्बैलेंस हो जाता। तो कुरान में भी अल्लाह ताला ने एक मकाम पर सूरत अश-शूरा में फरमाया कि नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया, हमने तुम्हारी मईशत को, जिंदगानी को इस दुनिया के अंदर तकसीम करके रख दिया है। वरफ़अना बादहुम फ़ौक़ बाद, और हमने बाज को बाज पर फजीलत दी है। क्या दिए बोले? बाज को बाज पर मईशत के एतबार से, जिंदगानी के एतबार से बाज को बाज पर क्या दी है? फजीलत दी है, ताकि तुम एक दूसरे से अपना हिस्सा ले सको, है ना। अगर सब अमीर हो जाते हैं तो आपके घर में नौकरानियां कहाँ से आती हैं? आपके घर में नौकर कहाँ से आते हैं? आपके खिदमतगार, आप आराम से घर में सोए हुए हैं और वो सुबह सुबह आकर आपके घर की सफाई कर रहा है। क्या ये मुमकिन रहता? बोले तो सही। और सब अगर गरीब होते तो क्या ये मुमकिन रहता कि जितना साफ सुथरा प्यारा माहौल हमें जो नजर आ रहा है? तो ये तो अल्लाह की हिकमत है कि रब्बे कायनात दुनिया के निजाम को चलाने के लिए इस तरह के जो है तफावुत को रखा हुआ है। लेकिन उससे ऊपर जाकर, सबसे ऊपर अल्लाह ने एक ऐलान कर दिया। वो ऐलान क्या है कि वलकद कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को, तमाम इंसानों को मुअज्जज बनाकर पैदा किया है। किसी भी इंसान को इस बुनियाद पर जलील नहीं किया जा सकता, उसकी इज्जत पर हाथ नहीं डाला जा सकता कि वो गरीब है, वो मजदूर है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो हदीस मुबारक का मफहूम है कि मजदूर और जो उसका मालिक है, उसमें इस एतबार से तो फर्क होगा कि वो काम कराने वाला है, ये काम करने वाला है, लेकिन मेयार जिंदगी के अंदर इतना फर्क नहीं होना चाहिए। मेयार जिंदगी क्या है कि जो तुम खाओ उसे खिलाओ, जो तुम पहनो उसको पहनाओ। मेयार जिंदगी इंसान की जो डाई नीड्स हैं, बुनियादी जरूरतें हैं, वो सब की बराबर है। बोलिए यहाँ से कोई खड़ा होकर कहे कि मैं चूंकि अमीर हूं तो मेरा खाना ज्यादा है। खाना महंगा सस्ता तो हो सकता है, लेकिन खाने की मिकदार कमोबेश सबकी बराबरी होती। बोले भाई ऐसा ही है ना, आप 1.5 प्लेट खा लेंगे, मैं 1 प्लेट खा लूंगा, ये थोड़ा सा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके पास पैसे ज्यादा हो, आपके मैं पूरी देख खाऊंगा, खा के दिखा दूं। हाँ बोले तो बुनियादी जरूरत अल्लाह ने सबकी बराबर रखी, इसीलिए रखी है कि बाकी मामलात में तो तुम आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन इन बुनियादी जरूरतों में बराबर होना चाहिए। ये लंगर खाने खुल रहे हैं, ये सड़कों पे खड़ा करके लाइन बनाकर जो हम तकसीम कर रहे हैं, जो करने वाले हैं उनकी तारीफ मैं करता हूं, लेकिन ये अच्छा साइन नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो काम काज करने वाले हैं उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो रही है। इसीलिए तो डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, शायर मशरिक रहमतुल्लाह अलैह, मैं तो हैरान हो जाता हूँ, जिस उन्वान को उठाओ उस उन्वान पर उनकी कोई ना कोई बात मिल जाती है, कोई ना कोई शेर मिल जाता है। क्या कमाल के बंदे थे वो, अल्लाह ने क्या कमाल उनको अता फरमाया था। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की अजमत को समझना है तो ईरानियों से जाके पूछो। मैंने अभी कुछ अरसे पहले पढ़ा कि ईरान जो जंग लड़ रहा है ना, वो इकबाल लाहौरी के बल पे लड़ रहा। मेरी बात आप समझे? इकबाल लाहौरी, वो लोग इकबाल लाहौरी कहते हैं, इकबाल लाहौरी के बल पे लड़ रहा है। और हम कैसे लाहौरी हैं कि इकबाल को भूल चुके हैं। तो डॉक्टर मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं कि मकर की चालों से बाजी ले गया सरमायादार, इसीलिए इन्होंने दौलतमंद नहीं लिखा। अब आपके जहन में, अगर आप अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं, आपके पास दौलत है और आप अल्लाह की राह में खूब खर्च कर रहे हैं, अल्लाह के बंदों को दे रहे हैं, अल्लाह के बंदों पर अपनी दौलत को इस्तेमाल करके उनके लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं, तो आप बोले मैं सरमायादार नहीं, मैं दौलतमंद हूं। क्या हूं बोले? ठीक है। और अगर आप पैसे को सींच सींच के रख रहे हैं और तिजोरियों को भरते चले जा रहे हैं, फिर आप समझ जाएं कि आप सरमायादार। आप क्या हैं? सरमायादार। और सरमायादार की अजमत बयान हो रही, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल उनकी नेगेटिव अजमत को बयान कर रहे हैं। फरमाते हैं मकर की चालों से बाजी ले गया सरमायादार,
मकर की चालों से बाजी ले गया सरमायादार, इंतहाए सादगी से खा गया मजदूर मात। मात आप समझते ना किसको कहते हैं? किसको? हारने को कहते हैं कि मजदूर बेचारा अपनी सादगी से। आप देखते नहीं, मैं कभी कभी जाता हूँ सोसाइटीज वगैरह में, घूम रहा होता हूँ रात को वॉक करते हुए, मैं देखता हूँ रात में सुबह में कभी कभार, कई दफा मैं इस पे बातचीत भी करता हूँ, बस 1-2 मिनट लूंगा। और ये जब नया घर बनना शुरू होता है ना, कोई भी नया घर 10 मरले का, 1 कनाल का, 5 मरले का, तो सबसे पहले क्या होता है, वहां पे एक आरजी कमरा बनता है, उसके साथ एक आरजी सा वॉशरूम बन जाता है। मैं वॉशरूम बोला इज्जत दे रहा हूँ, वो वॉशरूम क्या होता है, वो भी ऊपर से बिल्कुल खुला होता है, हाँ, सामने में कपड़ा लगा हुआ होता है, ठीक है, 2 चारपाइयां होती हैं। कुछ मजदूर जो है मिस्त्री अपनी बीवी बच्चों को भी ले आते हैं, कमरा चलो इधर ही रखेंगे, कुछ अकेले आ जाते हैं। फिर खुदाई शुरू होती है, फिर दीवारें बनती हैं, और उसके बाद फिर छत जल जाती है, फिर प्लस्तर होता है, और देखते ही देखते एक आरामदेह, बिल्कुल प्यारा खूबसूरत सा मकान बन जाता है। उसके बाद नए लोग नजर आ रहे होते हैं, मजदूर का कहीं नामो निशान नहीं। अरे भाई, हर सरमायादार आज का, अगर वो दौलतमंद बन जाए ना, हर सरमायादार, मैं आखिरी बात करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ, ये सबके लिए पैगाम है। हर सरमायादार आज दौलतमंद बन जाए। कौन सा दौलतमंद? हजरत उस्मानी गनी की तरह, हजरत सिद्दीक अकबर की तरह, हजरत अली की तरह, जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक अगर दौलतमंद बन जाए, तो सामीन मोहतरम, जब वो अपने 1 कनाल का मकान 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए लगाकर बना रहा हो, तो उसी वक्त वो सोच ले कि मेरा मजदूर जो ये मकान मुझे बनाकर देगा, मैं उसको भी एक छोटा सा कमरा, छोटा सा क्वार्टर किसी भी जगह बनाकर दूंगा, मैं इस घर में मुंतकिल होऊंगा, उसको उस घर में मुंतकिल कर दूंगा। तो 1 से 2 साल में किराएदार में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने हकीकी घरों में, और आप ये ना बोलिएगा कि मुफ्ती साहब बेचारों के पास इतने पैसे कहाँ, मुझे पता है बहुत पैसे हैं, खासतौर पे लाहौर में इतने पैसे हैं, जरी जमीनों को बेच कर ये अरबपति हो चुके हैं। धरती माँ को बेच कर क्या हो गए हैं? हाँ जी, मैंने धरती माँ बोला हल्का बोलने के लिए, धरती माँ को बेचकर ये क्या हो गए हैं? अरबपति हो चुके हैं। तो इन पर ये नहीं कहा जा सकता कि इनके पास पैसे नहीं है, ये बेचारे कहाँ से। मैंने पहले भी एक दफा अर्ज किया था, लाहौर में एक शख्स को मैं जानता हूँ कि वो सालाना 22 खानदान को, कितने? 22 खानदान को वो सालाना ज़कात के पैसों से घर बनाकर दे सकता है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।